زاد الطالبین کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ کل ہم نے حدیث نمبر 5 مکمل کر لی تھی، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ اس کی ترکیب بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں 6 نمبر کی حدیث۔ المرء مع من احبا، المرء مع من احبا، آدمی ساتھ ہوگا اس کے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ المرء کہتے ہیں آدمی، انسان، مع کے معنی ساتھ، احب، احب یحب احبابا، یہ باب افعال کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے محبت کرنا۔ اگر آپ بین السطرین دیکھیں تو لکھا ہوا ہے فی الدنیا والآخرتی، یعنی انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہتا ہے۔ دنیا میں بھی یہ ہے سسٹم اور آخرت میں بھی یہی نظام ہے ہوگا، جو جس کا پیروکار ہوگا وہ اسی کے ساتھ ہی اٹھا۔ حدیث نمبر 7، الخمر جماع الاثم، شراب گناہوں کو جمع کرنے والی چیز ہے۔ شراب بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں محاورتاً، لفظی ترجمہ ہوگا شراب گناہوں کو جمع کرنے والی ہے۔ الخمر مبتدا، جماع مضاف، الاسم مضاف الیہ، اسم اس کی جماعتی ہے آثام، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے ہو گیا خبر، اور مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث نمبر 8، الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، تاخیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور جلد بازی شیطان کی جانب سے ہوتی ہے۔ الانات مبتدا، من حرف جر اللہ مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا کائنۃ اسم فاعل محذوف کے، کائنۃ اسم فاعل محذوف اپنے متعلق سے مل کر کے ہو گیا خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ ہوا، معطوف علیہ۔ واو حرف عاطفہ، العجلۃ مبتدا، من حرف جر، الشیطانی مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا کائنۃ اسم فاعل محذوف کے، کائنۃ اسم فاعل محذوف اپنے متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف معطوف علیہ دونوں مل کر کے جملہ معطوفہ ہوا۔ حدیث نمبر 9، المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم، مومن بھولا بھالا اور شریف ہوتا ہے، مومن بھولا بھالا ہوتا ہے اور شریف ہوتا ہے، اور گناہ گار فاسق و فاجر آدمی وہ کیسا ہوتا ہے؟ چال باز اور کمینہ ہوتا ہے۔ خبن میں نے چال باز، شریر، اور لئیم کمینہ، بدبخت ہوتا ہے۔ غیرون کہتے ہیں ناتجربہ کار کو، شریف کو، اس کی جماعتی ہے اغرار، باب سمیعہ سے آتا ہے۔ کریمن کہتے ہیں شریف کو، درگزر کرنے والا، نیک۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، المؤمن مبتدا، غیرون خبر اول، کریم خبر ثانی۔ مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، الفاجر مبتدا، خب خبر اول، لئیم خبر ثانی۔ مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر معطوف، معطوف معطوف علیہ دونوں مل کر جملہ معطوفہ ہو گیا۔ خبر اول خبر ثانی اس کو اس لیے قرار دیا گیا کہ یہ یہاں پر اتنا جملہ ایک مکمل بات ہے، اور یہ ایک مکمل بات ہے۔ اگر ہم اسے پڑھیں المؤمن غیر تو بات مکمل ہو جاتی ہے، المؤمن کریم تو بات مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ موصوف صفت کی ترکیب نہیں بلکہ مبتدا خبر کی ترکیب ہے۔ مومن کے بارے میں آتا ہے کہ مومن بیچارہ سیدھا سادھا ہوتا ہے، بھولا بھالا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اگر کسی پر احسان نہیں کرتا تو کسی کو دکھ بھی نہیں دیتا ہے۔ اور منافق کے بارے میں آتا ہے، گنہگار کے بارے میں، کہ وہ چال باز اور
शरीर शरारती होता है। अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामती, जुल्म जो है वो क़यामत के दिन तारीकियाँ होगी, जुल्म तारीकियाँ हैं क़यामत के रोज़। जिस तरह नूर के बारे में आता है, जिस तरह नेक अमाल के बारे में आता है कि वो नूर हो गए, नूर बन के इंसान के लिए रोशनी पैदा करेंगे, इसी तरह ही जुल्म के बारे में आता है कि वो इंसान के लिए तारीकी का सबब होगी। तरकीब होगी इसकी, अज़्ज़ुल्मु मुब्तदा, ज़ुलुमातुन मौसूफ, यौमा मुज़ाफ, अलक़ियामती मुज़ाफ इलैह। मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह से मिलकर मफ़ऊल फ़ी हुआ, काइनतुन इसमें फ़ाइल महज़ूफ़ के, काइनतुन अपने मुतअल्लिक़ से मिलकर सिफ़त, ज़ुलुमातुन मौसूफ़ की, मौसूफ़ अपनी सिफ़त से मिलकर के हो गया मुब्तदा ख़बर, और मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। हदीस नंबर 11, अल बादिउ बिस्सलामी बरीउ मिनल किबर, सलाम से इब्तिदा करने वाला, सलाम की पहल करने वाला वो बरी होता है घमंड से, तकब्बुर से। यानी जो आदमी पहले सलाम कर दे उसके बारे में बताया गया है कि उस आदमी के अंदर तकब्बुर नहीं हो सकता, क्योंकि सलाम से आगाज़ करने वाला हमेशा मुतवाज़िअ होगा, क्योंकि इंसान के दिल में ये ख्वाहिश होती है कि लोग उसे सलाम करें, लोग उसकी इज़्ज़त करें, और ये तकब्बुर के कबील से आता है। जो पहले सलाम करता है उसमें बड़ाई नहीं होती, क्योंकि सलाम में पहल वही करेगा जो अपने आप को छोटा समझेगा, जो अपने आप को बड़ा समझता है वो सलाम में पहल नहीं करता, क्योंकि उसकी ख्वाहिश तो यही होती है कि सब लोग उसको सलाम करें। इसीलिए हदीस शरीफ के अंदर ये आया है कि सलाम में पहल करने वाला वो तकब्बुर से बरी होता है। तरकीब इस तरह से होगी, अलबादिउ इसमें फ़ाइल, बा हर्फ जर, अस्सलामी मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ होकर इसमें फ़ाइल के मुब्तदा, अलबादी सीगा इसमें फ़ाइल, हुआ ज़मीर इसके अंदर फ़ाइल है, अलबादी सीगा इसमें फ़ाइल, बा हर्फ जर, अस्सलामी मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ हुआ इसमें फ़ाइल के, इसमें फ़ाइल अपने मुताल्लिक़ से मिलकर मुब्तदा, बरीउन सीग़े सिफ़त, मिन हर्फ जर, अल किबरी मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ हुआ बरीउन सीग़े सिफ़त के, बरीउन सीग़े सिफ़त अपने मुताल्लिक़ से मिलकर ख़बर हुई, मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हो गया। हदीस नंबर 12, अलबादी अद्दुनिया सिज, हदीस नंबर 12, हदीस नंबर 12, अद्दुनिया सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिरी, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना इसलिए है कि मोमिन आज़ाद नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर पाबंदियाँ आयद की गई है कि उसको ये काम करना है या नहीं करना है, और जो काफिर है उसे किसी चीज़ की पाबंदी नहीं, ना उसे नमाज पढ़ना, ना उसे रोज़े रखना, ना उसे नेक काम करना, उसके बारे में बताया गया है कि दुनिया मोमिन के लिए जन्नत और काफिर के लिए जन्नत है, काफिर की जन्नत है। अद्दुनिया मुब्तदा, सिजनु मुज़ाफ़ मेरी मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मातूफ़ अलैह, वाव हर्फ़ अत्फ़, जन्नतु मुज़ाफ़, अल काफिरी मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मातूफ़, मातूफ़ मातूफ़ अलैह से मिलकर के हो गया ख़बर, मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। ये इस हाशिए के अंदर भी ये बात लिखी हुई है, दुनिया सिजुनुल मोमिनी लिअन्नहा ज़य्यक़तुन अलल मोमिनी, इसलिए कि दुनिया जो है वो मोमिन के ऊपर तंग होती है, युरीदुल खुरूज मिनहा दाइबन इला फ़ज़ाइल क़ुदसी, वो उससे हमेशा हमेश के लिए निकल कर जन्नतुल फिरदौस की तरफ पहुँचना चाहता है, और काफ़ी तमन्ना करता है हमेशा उसमें रहने की। हदीस नंबर 13, अस्सिवाकु मत्हरतुन लिल फमी,
वमा का सबब है। मिसवाक मुंह को साफ करने वाली है और रब को राजी करने वाली है। अस्सिवाकु मुब्तदा मतहरतुन फ़ेल, मतहरतुन फ़ेल, मुशाबा इसमें फ़ाइल के, लाम हरफ जर, अल-फमी मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ हुआ, मतहरतुन सिग़ा, मतहरतुन मज़दर के, अस्सिवाकु मतहरतुन लिल-फमी व मरज़ातुन लिर-रब्बी। अस्सिवाकु मुब्तदा, मतहरतुन लिल-फमी, मतहरतुन मज़दर है, यह मज़दर मीमिया लिखा हुआ है और ये मुशाबा है इसमें फ़ाइल के, बिमाना इसम फ़ाइल, इस्मिल फ़ाइल, इसमें फ़ाइल के माना में है, यानी मिसवाक मुंह को साफ करने वाला है और रब को राज़ी करने वाला है। वह कज़ल मरज़ात, और इसी तरह मरज़ात है, यानी ये भी मज़दर मीमी है और इसमें फ़ाइल के माना में है और रब को राज़ी करने वाली शे है। अस्सिवाकु मुब्तदा, मतहरतुन मज़दर बिमाना इसमें फ़ाइल, लाम हरफ जर, अल-फमी मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ हुआ, मतहरतुन मज़दर के, मतहरतुन मज़दर अपने मुताल्लिक़ से मिलकर के मातूफ़ अलैह, वाव हरफ अत्फ़, मरज़ातुन मज़दर, लाम हरफ जर, अर्रब्बी मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ हुआ मज़दर के, मज़दर अपने मुताल्लिक़ से मिलकर मातूफ़, मातूफ़ मातूफ़ अलैह, ये मातूफ़ और ये मातूफ़ अलैह दोनों मिलकर के ख़बर मुब्तदा, ये मुब्तदा अपनी दोनों खबरों से मिलकर, अपने खबर से मिलकर, मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ, ये भी हो गया। मिसवाक के बारे में ये हदीस शरीफ वारिद हुई है, इसमें मिसवाक के दो फ़ायदे बताए गए हैं। सबसे पहला फ़ायदा दुनियावी और दूसरा फ़ायदा उखरवी है। दुनियावी फ़ायदा यह है कि भाई मुंह साफ रहता है, दांत साफ रहते हैं, और उखरवी फ़ायदा यह है कि अल्लाह भी राज़ी होता है, अल्लाह की रज़ा का सबब है। अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफ़ला, हदीस नंबर 14, ऊपर वाला हाथ बेहतर है नीचे वाले हाथ से, सुफ़ला मैंने नीचे, अल यदुल उलिया इसके नीचे लिखा हुआ है वहियल मुनफ़िक़तु, यानी ये ऊपर वाला हाथ वो खर्च करने वाला हाथ है, ऊपर वाला हाथ वो बेहतर है नीचे वाले हाथ से। ये मुब्तदा है, ये इसमें तफजील सीग़ा सिफ़त है यहाँ पे, मिन हरफ जर, ये मौसूफ़, अल-यदी मौसूफ़, अस्सुफ़ला सिफ़त, मौसूफ़ सिफ़त से मिलकर मुताल्लिक़ हुआ, खैरुन इसमें तफजील के, खैरुन इसमें तफजील अपने मुताल्लिक़ से मिलकर के ख़बर, और ये मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। यह इरशाद फरमाया कि मांगने वाला हाथ जो है वो अच्छा नहीं है, देने वाला हाथ अच्छा है। बल्कि एक जगह तो ये लिखा हुआ है मसअले में कि अगर कोई आदमी एक दिन की रोज़ी का मालिक हो तो उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो सवाल करे, किसी से मांगे, और इसी तरह ही जो आदमी एक दिन खाने का, एक दिन की रोज़ी का मालिक है, उसको देना भी जायज़ नहीं है। हदियतन दे सकते हैं, लेकिन बाकायदा अगर किसी उसका पेशा है तो उसको देना मसअले के रूह से जायज़ नहीं। हदीस नंबर 15, अल-गीबत अशद्दु मिनज़्ज़िना, गीबत जो है वो ज़िना से भी ज़्यादा शदीद है, ज़िना से भी ज़्यादा सख्त बताया गया है गीबत को। वजह उसकी यही है, लोगों ने पूछा कि गीबत जो है वो ज़िना से ज़्यादा शदीद क्यों है, तो उसके बारे में इरशाद फरमाया कि चूँकि ज़िना करने वाले को मालूम होता है कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, जबकि गीबत करने वाले को इस गुनाह का इल्म ही नहीं है, और वो गीबत करता रहेगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसका ये गुनाह उस गुनाह से जो सरासर गुनाह अजीम है उस गुनाह से भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए इरशाद फरमाया कि गीबत जो है वो ज़िना से भी ज़्यादा शदीद है। तरकीब इसकी इसी तरह ही होगी जिस तरह यह है, अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफ़ला, अल गीबत मुब्तदा, अशद्दु इसमें तफजील, मिन हरफ जर, अज़्ज़िना मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ हुआ, अशद्दु
صیغہ اسم تفضیل کے اور یہ اس کے ساتھ مل کر کے ہو گئی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت جو ہے زیادہ سخت گناہ ہے زنا سے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ غیبت کیسے زیادہ سخت ہے زنا سے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی زنا کاری کرتا ہے اور وہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں، لیکن غیبت کرنے والے کو یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ وہ گناہ کر رہا ہے، بلکہ جب اسے معلوم نہیں ہوگا تو وہ اس کام میں ملوث رہے گا اور یہ کام بڑھتا ہی چلے جائے گا۔ اس لیے